Hello students, how are you? So today we are going to discuss another topic, general method of finding PI. General method of finding particular integral particular integral particular integral of of any function phi x. तो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पीआई निकालते हैं, पीआई क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं और हम इससे भी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते टॉपिक। देखिए, अगर कोई इक्वेशन दी होती है, इफ एफ ऑफ डी इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन is an auxiliary equation, then pi of a function is of a function phi x is written as pi is equal to 1 upon d minus a into phi of x। और हम सबको पता है, क्या पता है कि pi अगर हम लिखना चाहें तो एक y का फॉर्म होता है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू पाई, क्योंकि ये क्या होता है, y का ही पार्ट होता है, क्योंकि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे d माइनस ए से इंटू y इज इक्वल टू वी हैव डायरेक्टली पाई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट dy माइनस ए वाई इज इक्वल टू फाई एक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। इफ यू चेक दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अगर हम ये चेक करते हैं तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 is a linear equation of the type, कौन सा टाइप है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एंड यू ऑलवेज नो दैट क्यू इज अ फंक्शन ऑफ और कांस्टेंट। तो अब हम इसका अगर सोल्यूशन निकालना चाहें तो देयरफॉर the solution of equation 1 is given by, कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
y into integrating factor equals to integration of integrating factor into capital Q dx plus constant c. And in this case we are not going to write the constant c because we are driving a formula. So what is the integrating factor for this equation? You know that integrating factor is equal to e to the power integration of p dx. तो इस केस में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p, your p is minus a, so integration of minus a dx and q is equal to pi x. Now substitute all these values, give it equation number 2. Equation number 2, therefore this implies that y into integrating factor means e to the power minus a dx is equal to integrating factor e to the power integration minus a dx into phi x dx. ये हमने फॉर्मूला लिख दिया. अब क्या करेंगे, हमें चाहिए यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो दिस इम्प्लाइज दैट y into e to the power minus ax is equal to integration of e to the power minus ax phi dx. phi dx क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus a dx is equal to e to the power minus a, and integration of dx will give you the integration of minus a x. This implies that y, take it into the denominator, so you have a 1 upon e to the power minus ax integration of e to the power minus ax phi x dx. So this implies that y is equal to e to the power ax integration of e to the power minus ax phi dx. तो याद रखिएगा ये आपका फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कोई भी क्वेश्चन होगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इन शॉर्ट क्या हुआ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था y किसको माना था? y हमने एज्यूम किया था 1 अपॉन d माइनस a इंटू फाई एक्स gives you e to the power ax integration of e to the power minus ax phi x dx. तो हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला जो हुआ वो ये हुआ. तो याद रखिएगा इस फार्मूले को हम लोग बार बार यूज़ करेंगे जब जब हमें रिक्वायरमेंट होगी. तो रिमेंबर दिस फार्मूला. So let's solve few problems that helps you to clear the concept. So write the question number 1. Question number 1. What the question number 1 tells? Solve the differential equation. Differential equation is d2y upon dx square plus 9y is equal to sec 3x. Now solution. गिवन क्या गिवन है? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू sec क्यूब x, नॉट sec क्यूब, sec 3x, सॉरी, sec 3x.
इक्वेशन नंबर 1 बहुत क्रिएट कर चुके हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा d² प्लस 9 equals to 0. This implies that d is equal to plus minus 3i. This implies that complementary function CF is equal to C1 cos 3x plus C2 sin 3x, equation number 2. Now we are going to find the PI. So PI is equal to 1 upon d square plus 9 into sec 3x. Now we will break it. This implies that Pi is equal to 1 upon d square minus 3i whole square sec 3x. a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. This implies that Pi equals to 1 upon d plus 3i into d minus 3i. ये सारा ड्रामा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट कर सकें. अभी मैं स्टैंडर्ड फार्मूला आपको लिख के बताऊंगा. sec 3x स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था? स्टैंडर्ड फार्मूला है सिंस वी नो दैट 1 अपॉन d माइनस a phi x is equal to e to the power ax इंटीग्रल e की पावर माइनस ax phi x dx. इस फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 9 इंटू sec 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6i. पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन d माइनस 3i माइनस 1 अपॉन d प्लस 3i और इंटू 3i इंटू sec 3x. Remove this line, this is confusing. So what we are going to do, this implies that give it equation number 3. Consider 1 upon d minus 3i into sec 3x. इसको ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं पहले. तो क्या आ जाएगा? ये आएगा e की पावर माइनस, देखो बीच में माइनस है, यहाँ पर माइनस, तो e की पावर 3i इंटू एक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 3i, e की पावर माइनस 3i x इंटू sec 3x dx. So this implies that 1 upon d minus 3i sec 3x is equal to e to the power 3ix इंटू ब्रैकेट खोलेंगे तो एक फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ. e to the power i थीटा is equal to cos थीटा प्लस i sin थीटा. और अगर e की पावर माइनस i थीटा होता है तो ये होता है cos थीटा minus i sin theta. So we are going to use the formula number 2. Remember this formula. So what we have cos 3x minus i sin 3x into sec 3x को 1 by cos 3x लिखेंगे into dx. ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 अपॉन d माइनस 3i sec 3x is equal to e to the power 3ix
ब्रैकेट ओपन करेंगे, बचेगा 1 माइनस आई इंटू टेन 3x होल dx। अब इसके ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस 3i sec 3x इज इक्वल टू ई टू पावर 3ix। इंटीग्रेट करेंगे तो 1 dx का मतलब x माइनस आई। Now what we are going to do, we are just going to integrate this 10x. So what is the integration of this one? Just tell me. The integration of this part gives you minus log cos 3x whole upon 3। याद रखना, since integration of 10ax is equal to either log sec ax अपॉन a होता है और ये होता है माइनस 1 अपॉन a log cos x cos ax। तो उस फॉर्मूले का यूज किया, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस 3i sec 3x इज इक्वल टू ई टू द पावर, चेक कर लेते हैं, ई टू द पावर 3i e to the power 3ix in bracket x minus minus plus I upon a log cos 3x। a नहीं था, 3 था। ये हो गया हमारा 3। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं, 4। सिमिलरली 1 अपॉन डी प्लस 3i, इक्वेशन 3 का एक बार चेक करो। इक्वेशन 3 आपकी, ये देखो, इसका सेकंड पार्ट, अब हम ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो sec 3x इज इक्वल टू, ये है, इसका कॉन्जुगेट ये होगा, तो इसके प्लेस पे हम क्या करेंगे, आई को रिप्लेस करेंगे माइनस आई से, सिर्फ इतना ही चेंज आना है, बाकी कुछ नहीं आना है, और ये आएगा एक्स माइनस आई बाई 3 log cos 3x, इक्वेशन नंबर 5। अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 4 and 5 in equation 3 we get, हमें क्या मिलेगा वो दिखाते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारा पी था, पी किसके बराबर था, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू सेक 3x इज इक्वल टू 1 अपॉन 6i इन ब्रैकेट, पहले हमारे पास d माइनस आई था, तो d माइनस आई का मतलब होगा e की पावर 3i x इन ब्रैकेट x प्लस i बाई 3 log cos 3x ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस e टू द पावर माइनस 3i x, अगेन पुट वन ब्रैकेट x माइनस i बाई 3 log cos 3x bracket close, small bracket close. This implies that pi is equal to 1 upon 6i in bracket, open all the bracket, so you have a e to the power 3ix into x, यहाँ का ये वाला पार्ट ले लो, माइनस x इंटू ई की पावर माइनस 3i x। नाउ
plus I by 3 e to the power 3ix log cos 3x minus minus plus 1 I by 3 e to the power minus 3ix log। सिर्फ बेटा ब्रैकेट ओपन करना है आपको और कुछ नहीं करना है और अरेंज कर देना है। देखो इन दोनों टर्म में अंडरलाइन किया था एक्स एक्स कॉमन आएगा। इस टर्म में देखो आपको ये टर्म कॉमन मिलेगा और ये टर्म कॉमन मिलेगा, ये टर्म और ये टर्म, तो जो बचेगा उसको अरेंज कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आई इक्वल्स टू 1/6i in bracket x e to the power 3ix minus e to the power minus 3ix bracket close plus I by 3 log cos 3x into e to the power 3ix, and then we have plus e to the power minus 3ix. Now I am going to tell few more formula and that will use here. So what are the formula? एक फार्मूला होता है, रेड पेन से मैं लिख रहा हूँ तो ये फार्मूले आपको याद रहने चाहिए हमेशा। cos थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा is equal to e to the power I theta minus e to the power minus I theta upon 2i। रिमेंबर दिस थिंग, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कॉस में प्लस होता है, अपॉन में 2 होता है, साइन में माइनस होता है, बाकी सब कुछ सेम है, अपॉन में 2i होता है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दिस फार्मूला, देन आवर पी आई विल बी, दिस इम्प्लाइज दैट pi is equal to 1/6i इन ब्रैकेट, क्या कॉमन था चेक कर लेते हैं, कॉमन था x, तो x इंटू 2i साइन 3x आएगा प्लस i बाई 3 लॉग कॉस 3x इंटू 2 कॉस 3x आएगा फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू, अब क्या करते हैं हम इसमें ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट होगा, देखते हैं। देखो ये आएगा 2ix साइन 3x होल अपॉन 6i प्लस 2i cos 3x log cos 3x होल अपॉन 6i। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, कैंसिल करने के लिए रेड पेन यूज कर लेते हैं, ये कैंसिल होगा पूरा, यहाँ पर बचेगा 3 और इसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये पूरा कैंसिल होगा, ये एक ये 3 छूट गया था, उसके बाद में ये पूरा कैंसिल होगा, ये यहाँ बचेगा 2, नहीं यहाँ पर बचेगा 3 और एक 3 हमारा छूट गया था, कौन सा, ये वाला 3 छूट गया था, तो यहाँ पर 3 इंटू लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू x साइन 3x अपॉन 3 and then we have a 1/9 cos 3x log cos 3x. So this is our pi. After finding pi we can write the complete solution. So complete solution is given by y is equal to cf plus pi. So this implies that y is equal to cf means c1 cos 3x plus c2
साइन 3x प्लस 1/3x साइन 3x प्लस 1/9 cos 3x log cos 3x. So this is the process of finding solution of any equation by using the general method of finding PI. इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन इससे पहले हमने किए हुए हैं, कौन से क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में किए थे उसको यहाँ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, सॉल्व क्या सॉल्व करना है, d2 y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू e टू द पावर x tan x. Okay, so let's try to solve this question. Solution क्या दिया हुआ है, given d2 y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 dy अपॉन dx प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x tan x. इक्वेशन नंबर 1. पुट, ये सब चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। तो d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D. दिस इम्प्लाइज दैट d स्क्वायर y minus 2 dy plus 2y is equal to e to the power x tan x. This implies that d square minus 2d plus 2 into y is equal to e to the power x tan x. Equation number 2. Now we will create auxiliary equation. Auxiliary equation is equal to d square minus 2d plus 2 is equal to 0. इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, when you are going to use the factor we need to apply the formula of श्रीधराचार्य. तो d इज इक्वल टू, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आई आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए d। ये आप लिख के फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल के रख दी है। जब ये वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल के रख दी है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये हमारा जो रूट आया है, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, दैट इज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अब इसका CF आपको मालूम होगा, CF इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज दैट CF इज इक्वल टू e टू द पावर x, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 थी, प्लस C1 cos x प्लस C2 sin x। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना। नाउ PI इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x tan x। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, उस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। वो ट्रिक क्या किया, देखो अभी इसको हम जनरल मेथड का फॉर्मूला कन्वर्ट करेंगे। जनरल मेथड के फॉर्मूले में क्या आता है, जनरल मेथड के फॉर्मूले में आता है 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू 5x ना, इंटू ई टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ax 5x dx। तो 5 के प्लेस पे 2 फंक्शन है, ये इशू नहीं है। तो यहाँ पर एक ट्रिक क्या आती है, हमें यहाँ से कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं,
दिस इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू, इसको मैं ग्रीन पेन से डी के प्लेस पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, ये समझने के लिए है केवल आपके पास, ठीक है। तो डी के प्लेस पे डी को रिप्लेस करेंगे, ईच एंड एवरी डी विल रिप्लेस बाय डी प्लस जो भी वैल्यू 1 है तो 1, 2 होती तो 2, 3 होती तो 3, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ डी स्क्वायर चाहिए, एक वैल्यू लिखेंगे डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 2d प्लस 1 और एट लास्ट वी हैव अ 2, और e की पावर x को बाहर लिख लेंगे तो ये सॉल्व हो गया, जैसे हमने ये वैल्यू पुट किया e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म सॉल्व हो गया। दिस इंप्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू e टू द पावर x, नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 then minus 2d minus 2 and plus 2 into tan x, इसको ब्रैकेट में आपकी नॉलेज के जरूरत रहेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे और थोड़ा सा इसको, तो देखो क्या हो जाएगा, 2d से 2d कैंसिल हो गया, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट पी आई और इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan x। इक्वेशन नंबर 4, टेकिंग पी आई का हम कौन सा पार्ट लेंगे, टेकिंग 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 tan x, इसको ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर tan x, क्यों, सिंस आई स्क्वायर इज आयोटा imaginary number and it is equal to -1, ओके। तो माइनस माइनस गिव्स यू अ प्लस, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट, ऊपर इक्वेशन 4 तक की हम दे चुके हैं, दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस आई इंटू डी माइनस आई इंटू tan x। This implies that 1 upon d square plus 1 tan x equals to 1 upon 2i, पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, 1 upon d माइनस आई, ऑलमोस्ट सारे पार्शियल फ्रैक्शन एक जैसे ही होंगे, ये ध्यान रखना। तो नाउ इसको इक्वेशन नंबर 5 देंगे, नाउ टेकिंग 1 अपॉन d माइनस आई इंटू tan x, तो फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर ax, a की वैल्यू है 1 तो e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ e की x मीन्स ix इंटू e की पावर माइनस ix, 5 मीन्स tan x dx। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन d माइनस आई इंटू tan x इज इक्वल टू e टू द पावर ix, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं, cos x माइनस आई साइन x, और इंटू कितना हो जाएगा, इंटू आपका ये आ जाएगा इंटू tan x dx। अब क्या करेंगे, इसके हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस आई tan x is equal to e to the power ix integration of cos x into tan x means sin x upon cos x minus I sin x again sin x upon cos x into dx, cos x will cancel, और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस आई tan x इज इक्वल टू e टू द पावर आई एक्स, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाएंगे, बचेगा sin x
minus I sin square x upon cos x इंटू dx। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 1 अपॉन माइनस आई टेन एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर आई एक्स, ब्रैकेट बाहर लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। Now simplify this integration. This implies that 1 upon d minus I tan x equals to e to the power ix in bracket minus sin का इंटीग्रेशन cos x माइनस आई इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पर आपकी बेटरमेंट के लिए, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। इंटू डी एक्स। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मूव करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस आई टेन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर आई एक्स, ब्रैकेट में क्या था माइनस कॉस एक्स, माइनस चेक कर लेते हैं, माइनस आई यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस मीन्स सेक एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। This implies that 1 upon d minus I tan x is equal to, सिंप्लीफाई करेंगे e की पावर आई एक्स, क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, माइनस आई ब्रैकेट लगाते हैं, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब सारे ब्रैकेट ओपन करके इसको रीअरेंज कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन डी माइनस आई एक्स इज इक्वल टू ई टू पावर आई एक्स इन ब्रैकेट माइनस कॉस एक्स देन माइनस आई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस माइनस प्लस आई साइन ब्रैकेट क्लोज। सिमिलर इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं 6। सिमिलरली we have 1 upon d plus I tan x is equal to e to the power I x in bracket minus cos x, केवल I के सिंबल्स चेंज होंगे, ये हो जाएगा माइनस आई माइनस माइनस प्लस आई लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स minus I sin x, equation number 7. Putting these values now, subtracting equation 6 and 7, we get what we will get. See here, this implies that, be careful, 1 upon d minus I in bracket minus 1 upon d plus I, and after bracket we have to put tan x. See here, when you
subtract these things, what happen here? Minus, this sign becomes plus, this becomes minus, and this also becomes plus. So what we have, just check it. This term, this cos x is common in this and this term. What you left, this and this term, you have a e to the power I x and e to the power I x minus कॉमन लेना है, e to the power minus x minus e to the power minus I x. Now this is minus, this is also minus, so take the minus I log sec x plus tan x, and you left with e to the power I x प्लस ई टू पावर माइनस आई एक्स. अब इस टर्म को देखो, ये और ये क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हैं, तो हम क्या करेंगे, प्लस का आई साइन एक्स कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ई की पावर आई एक्स प्लस ई की पावर माइनस आई एक्स. अब हम कुछ फॉर्मूले यूज कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन d minus I minus 1 upon d plus I into tan x gives you, ये आ जाएगा कितना, माइनस cos x into this gives you 2 times I sin x माइनस I, और ये आपका है cos 2 cos x into 2 cos x log sec x प्लस tan x, फिर प्लस आई साइन x, और इसके प्लेस पे आएगा इंटू 2 cos x. अब जरा से चेक करो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आप उसे कैंसिल कर देते हैं. क्या कैंसिल हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म आइडेंटिकल है, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या बचेगा, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास बचेगा, दिस implies that 1 upon d minus I minus 1 upon d plus I tan x equals to minus I cos x into log sec x plus tan x. Equation number 8. Putting this value in equation number 5, in equation 5 we get, अब इक्वेशन 5 क्या थी, पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ. इक्वेशन 5 थी पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 इंटू ई टू पावर एक्स tan x, और इसको हमने बाइफरकेट किया था e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan x. दिस इम्प्लाइज दैट पी आई इज इक्वल टू, आप देख लीजिए डायरेक्ट, आपको सब लिखने की जरूरत नहीं है. तो e की पावर x, तो e की पावर x था, इंटू हमने ब्रेक किया था 1 अपॉन 2i, और इन ब्रैकेट इसको ब्रेक किया था 1 अपॉन d माइनस आई माइनस 1 अपॉन d प्लस आई आफ्टर ब्रैकेट tan x. So now you know the value using equation number 8, put the value here. So this implies that pi is equal to e to the power x into 1 upon 2i, और इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी है, माइनस आई माइनस 2 होगा, ये 2 छूट गया है, यस, माइनस 2
into 2 cos x log sec x प्लस 10x। तो क्या हो जाएगा हमारा, चेक करो, 2i से ये 2i कैंसिल हो गया, तो हमारे पास pi कितना आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ लेना। माइनस e की पावर x cos x log sec x plus 10x. So this is our pi. Now we can write the final answer. So complete solution is y is equal to cf plus pi, that is y equals to c1 y is equal to e to the power x c1 cos x plus c2 sin x minus e to the power x cos x log sec x plus 10x. This is our final answer. So thank you for your attention. We will meet in our next lecture. Bye bye.